Good evening, students. We'll wait for 2 more minutes and see let's the participants if the participants are joining. In the meantime, tell me, is the screen visible to you people? Just respond with a reaction. Thank you, Niti. Shaurya, mute yourself. Shaurya, mute yourself. Okay, class, we will start with the lecture today. In the last three sessions, we first started with what is risk and uncertainty, covered the different types of risk to associated while investing or making an investment decision, may it be credit risk, liquidity risk, exchange rate risk, interest risk, business risk or operating risk. And then we also subclassified into two major types, that was systematic risk and unsystematic risk. Systematic risk is the risk which is affects the whole market, or the whole uh, market gets affected or has lost because of those kinds of risk. Unsystematic risk is a company specific, industry specific, or a firm specific risk. Now, systematic risk is the risk which is undiversifiable or unavoidable. Those risks are something which you'll have to learn to accept and manage the outcome. Whereas company specific risk or the unsystematic risk is the factor where we can diversify our risk. Diversification is nothing but investing in different types of securities or different industries in a particular security to us to balance out your profit or loss while investing. Today we'll be learning something more related to risk, that is measures of risk dispersion. Now we all studied that risk to be quantified as various techniques. We studied two of them, that is how to calculate variance and then standard deviation. Once you know how to calculate variance, the standard deviation is nothing but root of the answer. Whatever is your variance, when you take the square root of that, what the answer which you get is nothing but your square or standard deviation. Both standard deviation and variance helps us to understand the fluctuation between the expected result and the market. Now, today we'll be learning dispersions, measures of dispersion. Although we have done practicals of only two of those techniques, there are various others through which we can measure risk or dispersion and risk. Today we'll be doing or learning those things.
The first thing today we'll be learning first thing is what is measure of dispersion. Now measure of dispersion is the worst suggest. Give me a minute, somebody's in the lobby. The waiting. Okay. So, dispersion as the word suggests is equal to range of possible returns. आपके returns में क्या range है? आपका return कितना ज़्यादा spread out हो सकता है? कितना ज़्यादा उसमें changes possible है? That is nothing what dispersion helps you to calculate. When I say dispersion, it is often represented as a stick in which is associated the risk which is associated with your final financial security. How much risk, how much chance of स्कैटरिंग ऑफ योर रिटर्न्स, आपका रिटर्न्स कितना फ्लक्चुएट हो सकता है, डिस्पोजर उसको आपको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है. आई विल रीड आउट द डेफिनेशन. Dispersion is the range of potential outcomes of the investment based on historical volatility of the returns. What is historical volatility? Past fluctuations in the return. Volatility is nothing but the price movement of the shares. Now past returns को basis पे आप calculate कर सकते हो कि उसका all time high या all time low. What is all time high and what is all time low? एक investment जब अपने highest peak पे था, suppose currently a share price of a particular investment is 70 rupees per share, but in the past it had also reached to 90. दैट उसको मैं बोलूंगी ऑल टाइम हाई. वाइल माइट भी हो सकता है उसका ऑल टाइम लो होगा 30. मतलब जब ये शेयर नीचे गया था तो इसका ऑल टाइम लो वाज 30 एंड ऑल टाइम हाई इज 90, वेर इज करंटली इट इज हाउ मच 70. तो इस तरीके से ये जो ऑल टाइम हाई या लो, तो आपको पता चलता है कि जो डिस्पर्जन पॉसिबल है वो इस रेंज में पॉसिबल है कि ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाएगा तो वो 90 जाएगा, नीचे जाएगा तो 30 जाएगा. ऑफकोर्स ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म हॉरिजोन, बिकॉज 70 से 90 जाना या 70 से 30 जाना इट कैन नॉट हैपन इन शॉर्ट टर्म गैप. आपका जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पीरियड है तो उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन इतना नहीं होता है, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म तो विद आफ्टर अ ईयर 2 years में ये फ्लक्चुएशन पॉसिबल है. This dispersion helps you to calculate how much risk is associated with your investment or security. जैसे बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, higher dispersion means the risk associated with your security is high, whereas lower dispersion means that the risk associated with your security is very low. अगर उसका स्प्रेड आउट ही कम है, मतलब उसमें जो मूवमेंट पॉसिबल है वो कम है, उसकी जो वोलेटिलिटी है वो कम है, वोलेटिलिटी कम है तो रिस्क कम है. Now, to measure this risk or dispersion, there are various techniques, namely range, coefficient of range, then we have standard deviation, variance, coefficient of variance, mean deviation, coefficient of mean deviation, quartile deviation, coefficient of quartile deviation, we have percentile change, we even have आपका covariance, then we have beta. All these things helps us to calculate the dispersion or measures of dispersion. Now there are two types of measures of dispersion. The first one is absolute, the second one is relative. Two types of measures of dispersion, absolute measure of dispersion and relative measure of dispersion. Now what is the difference between these absolute measure and relative measure? We will first start with what is absolute measure of dispersion. Now as you can see, there are a number of items mentioned, a number of types, the methods which are included in absolute are mentioned: range, variance, standard deviation, quartile and quartile deviation, mean and mean deviation. What are these are techniques through which you can carry out absolute measures of dispersion. But इसका मतलब क्या होता है, तो पहले हम लोग इसका मतलब समझेंगे. Absolute measure of dispersion contains the same value as a data set. The variations expressed in absolute measures of dispersion are in terms of average deviations of observation, like standard or mean deviation. Now, now इसका मतलब क्या होता है, आप जब रेंज
वेरिएंट स्टैंडर्ड ऑफ डिविएशन कर रहे हो ना, तो आप एक सेम डेटा सेट मतलब एक ही सिक्योरिटी का कैलकुलेट करते हो। यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द रिस्क एसोसिएटेड विद द सिंगल सिक्योरिटी। वहां पे आप कंपैरिजन या दो अलग अलग सिक्योरिटी का वहां पे आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। ना व्हाट डू मीन बाय एवरेज डिविएशंस? इन सब चीज आपने अभी स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट किया होगा, मीन या क्वार्टाइल। इफ यू आर स्टूडेंट्स ऑफ एफवाई, आपको पता होगा, आपने स्टैटिस्टिक्स में ये सब टेक्निक सीखी होंगी। स्टैट्स में यू स्टडी दिस स्टैंडर्ड डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, व्हाट इज, आपने 11th 12th के कॉमर्स में ये सीखा होगा, क्वार्टाइल्स एंड क्वार्टाइल डिविएशन, मीन एंड मीन डिविएशन। ये मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स के टेक्निक्स होते हैं इन विच यू कैलकुलेट कि आपकी एवरेज ना, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है कि इन द कैलकुलेशन इज डन इन टर्म्स ऑफ एवरेज deviations. What are deviations? मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, deviations are nothing but change. कितना ज्यादा चेंज पॉसिबल है, चेंज एज कंपेयर टू व्हाट, चेंज एज कंपेयर टू द एक्सपेक्टेड रिटर्न। ना एक्सपेक्टेड रिटर्न इज नथिंग बट योर एवरेज रिटर्न। तो जब हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैलकुलेट करते हैं, तो हम यूजुअली जो उसको कंपेयर करते हैं या जिसमें डिविएशन चेक करते हैं, वो एवरेज डिविएशंस के थ्रू चेक करते हैं। व्हाट इज मीन डिविएशन? जैसे आप क्वार्टाइल स्टैंडर्ड डिविएशन चेक करते हैं, वैसे ही आप मीन डिविएशन भी चेक कर सकते हैं, आपके मीन से कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन पॉसिबल है। नाउ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, यहाँ पे आप देखोगे तो सब में कॉमन है, आपने जितनी भी मेजर्स सीखे हैं किसमें, तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में, उसी का कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर यूज्ड टू compare distribution of two or more data sets. This compares value without units. यहाँ पे आप बात कर रहे हो रिलेटिव मेजर में कि आप कैसे दो से ज्यादा डेटा सेट को कंपेयर कर सकते हो टू चेक आउट कि कितना ज्यादा डिस्पर्जन है। जैसे अगर मैंने बात की रेंज का फॉर्मूला, द फॉर्मूला फॉर रेंज इज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था जिसमें मैंने ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो एक्सप्लेन किया। उसमें ऑल टाइम हाई मैंने क्या एग्जांपल लिया, 90, और ऑल टाइम लो कितना बोला, 30। नाउ 90 माइनस 30 दैट इज 60 इज द वैल्यू ऑफ योर रेंज। 60 पॉइंट्स का डिफरेंस है, इतना डिस्पर्जन का चांस है। दिस 60 इज नथिंग बट योर वैल्यू ऑफ रेंज। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की अगर मैं बात करूं, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में फॉर्मूला चेंज हो जाता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। ना L माइनस एस का आंसर तो मैंने निकाल लिया, कितना है, 60। L प्लस एस 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 इज 120, 60 डिवाइड बाय 120, आंसर क्या आ रहा है आपका, 0.5। तो व्हाट इज 0.5 कोएफिशिएंट ऑफ रेंज? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आपको 0.5 दिखा रहा है कि जो डिस्पर्जन है वो एवरेज 0.1 से कम है, 0.1 से कम है आपका रेंज ऑफ डिस्पर्जन। आप कोएफिशिएंट की किसी भी वैल्यू को चेक करेंगे ना, वो यूजुअली -1 से +1 के बीच में होता है। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आपको डेटा सेट्स या रिलेटिव मेजर जो होता है वो आपको दो डेटा सेट्स को चेक करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, दिस कंपेयर वैल्यूज विदाउट यूनिट्स। वैल्यूज विदाउट यूनिट्स का मतलब है ना, इसमें आप अलग अलग टाइप के असेट्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसका जो असेट का बेस है वो सेम हो। आप इसमें अलग अलग डिफरेंट असेट्स को कंपेयर कर सकते हैं, उनके बीच का रिस्क का वैल्यू निकाल सकते हैं।
इसमें जो सबसे कॉमन या सबसे मोस्ट यूज्ड होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जैसे यहाँ पे हमने रेंज और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन सीखा, उसी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। वो एक बहुत ज्यादा कॉमन हाईली यूज्ड मेथड है फॉर कैलकुलेटिंग रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव मेजर इज, यहाँ पे वो यूनिटलेस होता है, मतलब इट कैन गिव यू आपके जो यूनिट इन द सेंस, कैसे मैं एक्सप्लेन, लेट्स अज्यूम कि यूनिट आपके जो असेट का टाइप है, एक यूनिट में कितना है, शेयर प्राइस से रिलेटेड है या बॉन्ड, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेट्स को कैलकुलेट, उनके बीच का आपको कंपैरिजन करने में हेल्प कर सकता है। दो शेयर्स को, यहाँ पे एक शेयर को किसी पर्टिकुलर, क्योंकि दोनों का जो आंसर होगा ना वो पॉइंट्स में आते हैं, मतलब द सिंस द वैल्यू ऑफ योर कोएफिशिएंट इज यूजुअली रेंज्ड बिटवीन 1 to -1, आपको कंपेयर करना बहुत इजी हो जाता है इन रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। Now, now we will be studying each of those measures in detail. In the PPT, I haven't added the formulas for the same, but I would like you people to write the formula if possible, so that अगर मैं बाद में पूछ रही हूँ तो आपको पता हो। Now, the first measure for dispersion is the range. Now, range is one of the simplest way to calculate the dispersion of risk in a particular security. It will help. The calculation is very simple, but it is not most used method. Reason for that being is one of the most important limitation of the method. But we will first start with the meaning. Range is the simplest measure of dispersion. It shows the difference between maximum value and minimum values in a set of returns. It indicates the extent of variation in returns. यहाँ पे आप सिर्फ extreme values को consider करते हो. What do you mean by extreme values? The highest and the lowest. The range helps you to calculate only and only the extremes. बीच में कितना रिटर्न है, हो सकता है कि जो रेंज ऑफ रिटर्न्स है, लोवेस्ट इट हैज ऑलवेज बीन 60 एंड 90, और सिर्फ सडन ईयर में 30 गया है, तो द चांसेस ऑफ हाई रिटर्न्स आर मोर इन योर सिक्योरिटी। बट सिंस रेंज ओनली कंसिडर्स 90 and 30, ignoring the values which are in between those range, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की वैल्यू को इग्नोर करके हम ये डेटा निकालते हैं। दैट्स द रीजन आपकी जो डिस्पर्जन है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि the share price of the security might have always been in the range 60, 65, 70. But suddenly in a year, the government had introduced a new policy which benefited the company, and all of a sudden the share price has increased to 100. Usually जो उसका होता है वो 70 पे होता है, but because of this favorable change in the situation, उसकी share price move होके 100 पे गई। बट ये एक सडन इंक्रीज इन डिमांड था, तो उसके बाद प्राइस धीरे धीरे लो पे आई होगी। of course when the price moves up after a certain period of time it will come down। तो जब प्राइस नीचे आई तो वो वापस से 60, 70, 80 पे स्टेबल हो गई। अब अगर मैं इसका ऑल टाइम हाई देख रही हूँ तो वो 100 है, बट दैट वाज बिकॉज ऑफ अ सडन फेवरेबल सिचुएशन। अंडर नॉर्मल कंडीशन शायद उसको 100 रीच करने में बहुत टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू ड्यूरिंग दैट पीरियड। बट रेंज क्या करेगा, सिर्फ वो 100 का मार्जिन देखेगा और लोवेस्ट मार्जिन देखेगा, irrespective of the fact कि बीच में उसके वैल्यूज कैसे है। So that is one of the limitation of range, but the advantage that is it is one of the easiest method। अगर आपको थोड़ा basic एकदम starting में understand करना है तो you can use range as a technique to calculate the dispersion or risk volatility of your security। Next comes variance। Now variance and standard deviations are something which we had already discussed, but we'll go through it once again। Let me add students in the meeting. There are some of them in the waiting room. Wait.
Now, okay, variance. Variance is something which we have studied is helps us to measure the fluctuations or deviations in the returns or in the past returns. Now, it measures the average of the squared deviations. What is squared deviations? If you people collect to remember the formula, हम क्या करते थे? तो सबसे पहले expected return निकालते थे, that is the average. Then we used to find out the deviation, and the last part was always squaring the deviations. So the variance is nothing but average of the squared deviations of the returns from their mean. मीन का डिविएशन निकालकर उसका स्क्वायर करना. Now, what is the advantage of using variance, and what is one thing which makes it better than using range? It considers all the observations. जितने भी observations है वो सबको consider करता है और सबका deviation निकालता है. Not like range जहाँ पे सिर्फ extreme values को consider किया है. So over here it considers all the observations and the deviations are then calculated. Another advantage is that since it are expressed in squares, आपके जो numbers होते हैं वो कभी भी negative नहीं होते हैं. It is a non-negative variable. उस variance का आंसर कभी भी negative नहीं आता because of the simple fact of squaring of deviations. Square करने की वजह से every negative turns into positive. What was the formula? If you people remember, what is the formula for variance? मैंने range का बोला largest minus smallest. What is the formula for variance? Submission of x minus x bar the whole square upon n. What is n? The number of years for which the data is provided. Again, submission of x minus x bar the whole square upon n. What is x over here? The security which we are talking about. Now, there is another formula in which the probability is given. When the probability in your question is given, the formula changes. Over there, it is summation of p into x minus x bar the whole square. Summation of p into brackets x minus x bar the whole square. What is x bar over here? The expected return. What is x bar? The expected return or the mean return. The next method over here is standard deviation. Now, what is standard deviation? Standard deviation is nothing but the square root of variance. It is again, it follows the same process. आपके mean deviations को निकाल के square करता है, but at the last वो क्या करता है? आपका square root निकालता है. Now, standard deviation, whenever we use the word standard deviation, it is always associated with the total risk in the investment. आप सिस्टमैटिक प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क दोनों को कैलकुलेट करते हो, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन. व्हेन यू कैलकुलेट बोथ सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो टोटल रिस्क होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन. इट इज एक्सप्रेस्ड इन ओरिजिनल यूनिट्स. जो आपका वेरिएंस था वो कौन सी यूनिट में होता है? स्क्वायर्ड यूनिट्स में होता है. बट स्टैंडर्ड डिविएशन बिकॉज ऑफ टेकिंग ऑफ स्क्वायर रूट is expressed in original units. How do we interpret? आपका जो रिलेशन होता है वो हम कैसे निकालते हैं? हायर द स्टैंडर्ड डिविएशन हायर द रिस्क. हायर द स्टैंडर्ड डिविएशन हायर द रिस्क. सपोज किसी एक सिक्योरिटी में दो सिक्योरिटीज है मेरे पास, दोनों का रिटर्न है, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 12% है. दोनों की एक्सपेक्टेड रिटर्न तो सेम है, बट एक का स्टैंडर्ड डिविएशन 8% है और दूसरे का स्टैंडर्ड डिविएशन 10% है. मतलब कौन सी सिक्योरिटी ज्यादा रिस्की है? सिक्योरिटी बी इज मोर रिस्कियर. It means that security B is more riskier when compared to security A, because although the returns are same, the standard deviation is higher for which? Security B. Now, importance. Indicates the volatility of the returns and is used in portfolio construction. What is portfolio construction? The decision of which securities you are going to invest in. कौन सी securities आपको
आपके रिटर्न्स को या रिस्क को बैलेंस करने में हेल्प कर रहे हैं. सी, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पोर्टफोलियो, हमने दो वर्ड सीखा था, एक्टिव पोर्टफोलियो एंड पैसिव पोर्टफोलियो. एज अ इन्वेस्टर यू हैव टू डिसाइड, हाई इज योर रिस्क appetite high? If your risk appetite is high, so you'll try to invest in projects which give you higher returns, although the risk associated with is high. And if you are a passive investor where you feel like your risk appetite is very low, you'll go for balancing out your projects through diversification. अगर आप एक बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड डिविएशन वाला प्रोजेक्ट चूज कर रहे हो, तो दूसरा आप ऐसा प्रोजेक्ट चूज करोगे जो कि मार्केट ट्रेंड या जिसका रिस्क कम हो, सो दैट अगर कल को सपोज आपको एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में प्रॉफिट हो रहा है, तो दूसरी सिक्योरिटी का लॉस उससे बैलेंस आउट हो जाए. अगर एक सिक्योरिटी में प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे में लॉस हो रहा है, तो आप क्या करोगे, उसका आपका पोर्टफोलियो या डीमैट में वो ऑटोमेटिक सेट ऑफ हो जाएगा. और ये पॉसिबल कैसे होगा, जब आप एक बैलेंस्ड क्रिएट करोगे अपने रिस्क और रिटर्न के बीच में. Are you people listening and understanding? I have been speaking, but there was no reaction. If you people have any doubt at any point, do ask. Give an indication that you people are listening. Okay, yes. Hmm. And if you people have doubt, write it in the chat box. Okay, so we will continue ahead then if you people are done with this much. If you remember the formula for standard deviation, it is nothing but square root of variance. Next is coefficient of variance. Now, what is coefficient of variance? This is the relative measure of calculation. I have included this to understand that आप जब भी variance वगैरह calculate करते हो, तो साथ में coefficient of variation भी calculate होता है. The reason for that is it helps us to understand or compare easily with different securities. Also, the formula for coefficient of variation deals with variance and स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन, तो मैंने इसको भी इंक्लूड किया हुआ है. नाउ व्हाट इज सॉरी नाउ coefficient of variation measures relative risk by expressing dispersion per unit of expected return. It helps compare इन्वेस्टमेंट विद डिफरेंट रिटर्न्स. अब अगर आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स अलग अलग है या फिर आपके इन्वेस्टमेंट का टाइम जोन अलग अलग है, तो उसको कंपेयर करने के लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज कर सकते हैं. द फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज वेरी डिफरेंट. इट इज स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन. द फॉर्मूला
The formula for coefficient of variation is standard deviation upon mean into 100. Now this is only possible if you have also calculated the standard deviation in the mean of the project. तो आपको सबसे पहले अपना वेरिएंस निकालना है, फिर उसका स्क्वायर रूट करके स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है. वंस यू हैव द स्टैंडर्ड डिविएशन एंड द मीन, यू कैन कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ना हाउ डू वी इंटरप्रेट, सपोज आपको किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिल गया, तो आप उसको इंटरप्रेट कैसे करोगे? तो अ लोअर सीवी इंडिकेट्स अ बेटर इन्वेस्टमेंट व्हाइल अ हायर सीवी इंडिकेट्स ग्रेटर रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न. मतलब क्या? एक वन यूनिट ऑफ रिटर्न, एक पर्टिकुलर यूनिट, एक पॉइंट या एक परसेंटेज रिटर्न बढ़ने से आपके प्रोजेक्ट के साथ कितना रिस्क एसोसिएटेड है, उसको जो हमको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. इट हेल्प्स अस टू टेल यू आपका कि स्टैंडर्ड डिविएशन का प्रोपोर्शन कितना चेंज हो सकता है इन रिस्पेक्ट टू योर एवरेज वैल्यू, दैट इज द मीन. अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. सपोज दो प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं. एक प्रोजेक्ट ए है या स्टॉक ए है, उसका एवरेज है 15% और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन है 10%. तो अगर मुझे इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन विच इज इनटू 100. 10 अपॉन 15 इंटू 100. 10 अपॉन 15 इंटू 100. इसका आंसर बताओ मुझे. आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स. टेल मी द आंसर. The standard deviation is 10%. The mean is 15%. Calculate coefficient of variation. तो coefficient of variation कितना है इसका? Formula is standard deviation upon mean into 100. Those listening will reply in the chat box. Class. It is a very simple calculation. 10 upon 15 into 100. Why is nobody replying? Okay, 66.6. That is 67% when rounded off. Very good, Shaurya and Niti. So we got a return coefficient of variation at what percentage? 67%. आप उसको पॉइंट में रखोगे तो 0.67 आएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो 67 rounded off. Now let's take there is another stock. There is another stock or there is another investment in which the standard deviation is 5%. The standard deviation is 5%. The mean is 10%. The standard deviation is 5. The mean is 10. Calculate the covariance. If the standard deviation is 5 and the mean is 10%, the formula for covariance is standard deviation upon mean. What will be your average, that is coefficient of variance over here? 50%. Perfect. Now we have coefficient of variance of both the investment. मैंने पहले का तो चैट बॉक्स में लिखा, दूसरे का चैट बॉक्स में लिखा है, मैं पहले का भी लिख देती हूँ. So this was the data provided. दो स्टॉक का, सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी बी, बोथ द सिक्योरिटीज का डेटा आपको गिवन है. हमने कैलकुलेट किया जो आपका फर्स्ट का सिक्योरिटी, उसमें आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आया 67%, दूसरे में आया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 50%. अब मुझे अगर डिसीजन लेना है कि विच सिक्योरिटी इज बेटर एंड आई शुड इन्वेस्ट इन विच वन,
तो व्हाट अकॉर्डिंग टू इज द बेटर सिक्योरिटी, किसमें ज्यादा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? विच सिक्योरिटी, ए और बी? सो सी, अब सिक्योरिटी ए का रिटर्न ज्यादा है, सिक्योरिटी बी का रिटर्न कम है, बट सीवी किसका कम है या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किसका कम है? तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है स्टॉक बी का, मेकिंग इट अ लेस रिस्कियर प्रोजेक्ट। तो रिटर्न्स को चेक करने के साथ साथ आपने एसोसिएटेड रिस्क चेक किया बाय कैलकुलेटिंग कोवेरिएंस को या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से आपने जब कैलकुलेट किया तो किसका सीवी कम आ रहा है? स्टॉक बी का, या सेकंड केस में सीवी कम आ रहा है। सो मेकिंग इट अ बेटर और पोटेंशियली गुड ऑप्शन, अ पर्सन विल वांट्स अ लेसर रिस्क और मोर रिटर्न्स इन लेस रिस्क, तो उसको कौन सा चूज करना चाहिए? दे विल गो फॉर सिक्योरिटी बी or they'll invest in security B. That is how you take a decision or a call कि which investments are better. So coefficient of variation helps you to calculate this. ये आपको efficiency indicate करता है risk return trade off. I have already informed you risk return trade off is nothing but the relationship between the risk and return in a particular investment. We usually explain this by saying higher the risk, higher the return, and lower the risk, lower the return. Look at the limitations over here. Meaningful only for positive mean returns. ये जो फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, it has one limitation. Now what is this one limitation? It can only be calculated if your mean is positive. अब मीन इज पॉजिटिव इन द सेंस जो मीन का आंसर है इट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर. यू कैन नॉट कैलकुलेट दिस अगर नीचे सपोज डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है या डिनोमिनेटर में यू हैव अ नेगेटिव नंबर, सो it won't be possible to calculate coefficient of variation. Coefficient of variation can only be calculated if your mean is positive. Now you tell me कि mean negative हो सकता है क्या? Is it possible to have a negative average? Reply in the chat box with a yes or no. Is it possible to have a negative average in a particular investment? No? Sure? See, it is possible if a particular investment has continuous low or negative returns. I'll take an example. What is negative returns? आपके कॉस्ट से नीचे जा रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न से नीचे, जो मार्केट रिटर्न से नीचे जाता है तो हम उसको लॉस गिनते हैं. अगर वैल्यू नेगेटिव्स है, आपका रिटर्न नेगेटिव है कि उसने लास्ट टाइम -9% रिटर्न परफॉर्म किया और उस पहले 3 पॉजिटिव है फिर -9 है नेगेटिव, तो यू आर गेटिंग, अगर 2 ही साल का मैं एग्जांपल लेती हूँ, इफ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ चलो 3 इयर्स, सो फर्स्ट ईयर यू हैव अ पॉजिटिव रिटर्न ऑफ negative return of -3%, then you have a positive return of 1%, and then you again have a positive return of 1%. सो ओवरऑल यहाँ पे आपको जो एवरेज आएगा वो माइनस नेगेटिव में आएगा. सो इसीलिए नेगेटिव रिटर्न्स आर पॉसिबल, बट दैट इज ओनली केस व्हेन योर सिक्योरिटी इज गोइंग इन लॉस फॉर मेनी कंसिस्टेंट ईयर्स. अब अगर कोई सिक्योरिटी कंसिस्टेंटली लॉस में है तो ऑफकोर्स इट इज नॉट एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट इन दो सिक्योरिटीज. तो हम ऐसी सिक्योरिटीज का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल भी नहीं सकते, नाइदर इज इट एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट इन दो सिक्योरिटीज, मतलब उसमें रिस्क एसोसिएटेड हाई है. मीन कैन बी नेगेटिव बट मीन विल बी नेगेटिव ओनली फॉर पर्टिकुलर सिक्योरिटी और स्टॉक इज हैविंग अ और फेसिंग कंटिन्यूस लॉस, उसमें कंटिन्यूस रिटर्न्स उसके कम होते जा रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू आ सकती है. बट देन अगर उसकी वैल्यू ही नेगेटिव है तो नोबडी एज एन इन्वेस्टर इट वोंट बी एडवाइजेबल टू put your money in those investment or securities. Now comes the next thing, which is covariance and beta. We will first discuss what is covariance and then we'll go towards beta. These are not techniques to calculate your
measures of dispersion, but yeah, we do calculate risk using these two techniques. Now, what are those techniques? The first one is covariance. Covariance is nothing but a very useful technique, because over here we compare the returns of a particular security with market. Covariance measures the degree to which two variables move together. In finance, it indicates how returns on two securities vary in relation to each other. Nature, it measures the direction of relationship between two securities, helps in portfolio risk analysis, can be positive, negative, or zero. Now understand, covariance is a technique in which I'm not talking about measuring risk associated to one single security. अभी तक हमने जितना भी सीखा ना, उन सब में मैं क्या करती हूँ, एक एक सिक्योरिटी है, सबका अलग अलग स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, आई एम कंपेयरिंग देम एंड देन टेकिंग डिसीजन. पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो में आप एक ही सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करोगे क्या? नहीं, आप मल्टीपल सिक्योरिटीज में या मल्टीपल शेयर्स या मल्टीपल असेट्स में इन्वेस्ट करोगे. तो कोवेरियंस क्या हेल्प करता है? कोवेरियंस हेल्प्स यू टू स्टडी और कंपेयर और अंडरस्टैंड द डायरेक्शन बिटवीन दो सिक्योरिटीज, कि उनके प्राइस मूवमेंट के बीच में क्या रिलेशन है. नाउ व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट एंड what is the use of this calculating? Suppose I'll first take an example with the market, and then I'll take an example with two different securities. If you people get stuck at any point, do raise your hand or ask any question if you want to in the chat box. Suppose as an investor you have decided to invest in a security or shares of a XYZ company. अब वो XYZ कंपनी का आप पास्ट रिटर्न्स चेक करोगे. सर आपने 3-4 साल का पास्ट रिटर्न चेक किया, साथ में आप क्या करो, यू हैव मार्केट रिटर्न्स विथ यू. व्हाट इज मार्केट रिटर्न्स? कि आप उस समय पे उस इंडस्ट्री में कितने रिटर्न्स चल रहे हैं, या मार्केट उस टाइम पे एवरेजली कैसे रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है. सो यू हैव टू डेटा सेट्स विथ यू. एक है आपके सिक्योरिटीज का पास्ट रिटर्न, एक है एवरेजली मार्केट का पास्ट रिटर्न्स. Covariance will help you to study relation between these two values. How will it help you to study that? Suppose मैंने ये देखा कि मेरा covariance का वैल्यू जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है पॉजिटिव. आपके कोवेरियंस का आंसर क्या आया? पॉजिटिव आया. इसका मतलब यू हैव अ पॉजिटिव वैल्यू. इसको आप इंटरप्रेट कैसे करोगे? व्हाट डू यू थिंक दिस पॉजिटिव वैल्यू विल इंडिकेट? पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट्स दैट they tend to move in the same direction. Positive value in a covariance indicate that your security and the market will move in the same direction. अगर कल को मार्केट में ग्रोथ है, the market is moving upwards, even your security will move upwards. A positive covariance will help you to understand that your security is moving in direction to the market. अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपकी सिक्योरिटी भी किधर जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है, उसमें ग्रोथ होगा. वही सपोज मैंने बात की नेगेटिव कोवेरियंस, आपने फॉर्मूला लगाया, आंसर कैलकुलेट किया और वो आंसर आया नेगेटिव. वो आंसर नेगेटिव है, मतलब अगर मार्केट में ग्रोथ होगा तो आपकी सिक्योरिटी में उसका अपोजिट इफेक्ट होगा, आपकी सिक्योरिटी नीचे आएगी. सेकेंड केस, अगर मार्केट में डाउनफॉल होगा तो आपकी सिक्योरिटी में आपको ग्रोथ दिखेगा. अब मार्केट के केस में यूजुअली यू हैव अ पॉजिटिव कोवेरियंस, बिकॉज आपकी जो सिक्योरिटी होती है वो हमेशा मार्केट के साथ ही ऊपर नीचे जाएगी. ऑफ कोर्स देयर विल बी चेंज इन द वोलेटिलिटी, कि कितना ऊपर जाएगा. मार्केट अगर 10 पॉइंट से ऊपर जा रहा है तो आपका क्या सिक्योरिटी भी 10 पॉइंट से ऊपर जाएगा, ऐसा कंपलसरी है? नहीं, दैट इज एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट. बट एटलीस्ट वो भी कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा. तो आपकी जो सिक्योरिटी होती है और जो मार्केट कंटिन्यूइंग, आपकी जो सिक्योरिटी होती है और आपका जो मार्केट होता है, दे यूजुअली हैव व्हाट काइंड ऑफ कोवेरियंस? पॉजिटिव कोवेरियंस. तो इसमें तो मुझे इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. इफ द होल मार्केट इज मूविंग अबाउट, पूरा इकोनॉमी ऊपर जा रहा है, तो इवन योर शेयर्स विल हैव अ पॉजिटिव कोवेरियंस विद इट. बट व्हाट अबाउट इन्वेस्टिंग इन टू डिफरेंट सिक्योरिटीज?
सपोज कल को मैंने एक फॉर्म सिलेक्ट किया आईटी इंडस्ट्री का और मैंने दूसरा फॉर्म सिलेक्ट कर लिया किसी फिनटेक कंपनी को। फिनटेक भी वैसे तो आईटी एसोसिएटेड हो गया। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, मैंने एक आईटी कंपनी को सिलेक्ट किया, दूसरा मैंने सिलेक्ट कर लिया किसी बैंक को, एक इन्वेस्टमेंट बैंक को। सो नाउ आई हैव वन कंपनी रिलेटेड टू फिनेंस एंड अनदर वन रिलेटेड टू आईटी। मैंने दोनों का शेयर प्राइस लिया। अब इसमें अगर मैं कोवेरियंस निकालूंगी तो आई विल गेट टू नो कि अगर सपोज इस आईटी और फाइनेंस इंडस्ट्री में आई एम गेटिंग अ पॉजिटिव कोवेरियंस, दिस पॉजिटिव कोवेरियंस विल इंडिकेट कि अगर कल को शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो दोनों के शेयर प्राइस ऊपर जाएंगे, बट अगर नीचे जाएगा तो मुझे साथ में दोनों का ही नीचे जाएगा। आई विल हैव टू फेस लॉस इन बोथ द सिक्योरिटीज। अगर प्रॉफिट होगा तो भी दोनों सिक्योरिटीज में होगा, लॉस होगा तो भी दोनों सिक्योरिटीज में होगा। सपोज कोवेरियंस 1 हो गया, मतलब परफेक्टली पॉजिटिव कोवेरियंस है। वहीं अगर नेगेटिव है मतलब बोथ माय सिक्योरिटीज विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इफ वन ऑफ द सिक्योरिटी, सपोज मेरे आईटी इंडस्ट्री में मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा तो मेरे फाइनेंस इंडस्ट्री वाली सिक्योरिटी में मुझे लॉस होगा, या वाइस वर्सा। इट विल ऑलवेज मूव इन नेगेटिव डायरेक्शन। अब आपको पता चल रहा है कि ये कोवेरियंस ढूंढना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो तो मुझे बोलो, पॉजिटिव कोवेरियंस अच्छा है या नेगेटिव कोवेरियंस अच्छा है? अब इसमें तो आई एम एक्सपेक्टिंग रिप्लाईज, हाँ, कि पॉजिटिव कोवेरियंस इज अ बेटर ऑप्शन या नेगेटिव कोवेरियंस? व्हाट डू यू थिंक, विच इज अ बेटर ऑप्शन? कम ऑन, राइट समथिंग, राइट और रॉन्ग उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ लिखो, कुछ तो लिखो कि आपको इंटरप्रिटेशन में क्या समझ रहा है उसके। बिकॉज आप फॉर्मूला निकाल के कैलकुलेट कर रहे हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। फॉर्मूलाज आपको अब हैंड खुद से तो करना नहीं है। इट विल बी, द डेटा विल बी ऑन ऑल अवेलेबल ऑन अ क्लिक। आप क्लिक करोगे आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिल जाएगा, आपको कोवेरियंस, आपको स्टैंडर्ड डिविएशन। कुछ भी मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करना है। जो आपको मैन्युअली करना होता है वो होता है उसका इंटरप्रिटेशन, वो होता है डिसीजन मेकिंग एज एन इन्वेस्टर। आपने पर्सनल फाइनेंस लिया हुआ है तो अब आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट डू यू थिंक एज एन इन्वेस्टर, क्या अच्छा होगा? पॉजिटिव कोवेरियंस जहां पे दोनों सिक्योरिटी सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है, या नेगेटिव कोवेरियंस? ओके, नीति ने लिखा है नेगेटिव। व्हाट अबाउट अदर्स? अदर्स आल्सो रिप्लाई। Okay, I'll explain. See, covariance में either perfectly positive or perfectly negative. Both the cases might not be good. Then secondly, it is the decision whether which one is good, perfectly positive या negative, that depends entirely on the investor कि वो कितना रिस्क लेने को तैयार है। अगर सपोज यहाँ पे ना वैल्यूज होती है, जैसे 1 होता है, then it is 0.5, then 0, then minus 0.5 and minus 1। सपोज ये चार वैल्यूज की मैंने बात की। अगर 1 है मतलब वो परफेक्टली पॉजिटिव है कि दोनों सेम क्वांटिटी में उनका जो मूवमेंट होगा वो इक्वली पॉजिटिव होगा। जितना उसमें लॉस है उतना ही उसमें लॉस होगा, या वाइस वर्सा। सो
नाइदर परफेक्टली पॉजिटिव नाइदर परफेक्टली नेगेटिव। एज एन इन्वेस्टर अगर मैं मेरे पर्सपेक्टिव की बात करूं, इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होता है वो जनरलाइज नहीं हो सकता। आई विल बिलीव कि मैं सोचूंगी कि मुझे माइल्डली या रिलेटिवली कम नेगेटिव। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा हर बार परफेक्टली नेगेटिव है। अगर वो -1 है तो मेरा सारा लॉस मेरे प्रॉफिट को सेट ऑफ कर रहा है, या मेरा सारा प्रॉफिट सिर्फ लॉस पे ऑफ करने में चला जा रहा है, तो देन इट इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी। मुझे ऐसा चाहिए कि प्रॉफिट भी हो और अगर कभी लॉस हो तो वो मैनेज आउट हो जाए। तो आई में गो फॉर अ वैल्यू जो जीरो नेगेटिव से लेके -0.5 के बीच में हो, या जीरो से लेके +0.5। अगर वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो आपका रिस्क थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, अगर वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो आपका रिस्क कम हो रहा है। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि एक इंसान कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है। उस हिसाब से विल मेक अ कॉल कि हाउ मच कोवेरियंस और व्हाट कोवेरियंस इज सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर इन्वेस्टर। कल को अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस की बात कर रहे हो, वेर यू आर एडवाइसिंग पीपल टू इन्वेस्ट, तो वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो इस डिसीजन को लेने में आपको अफेक्ट करेंगे। सम ऑफ देम आर दीज। Okay. There is another term which I will explain today, which is a term related to risk or associated to risk in a security or investment. That is beta. Now, what is beta of a security? I know you people might be thinking, इसमें alpha, gamma, beta. Yes, all of those are calculated while calculating risk. आपको alpha भी होता है, gamma भी होता है, beta भी होता है. Then you also have delta as well. But those things you'll be studying in future. Abhi, today I'm just explaining you the concept of beta. What is beta and how does it affects our decision making, or how does it helps us to calculate risk associated with our security. So first, the meaning of beta. Beta is nothing but it helps us to measure systematic risk. If you people remember what is systematic risk, it is the unavoidable risk. Now, if it is a non-diversifiable risk, it is very important that we calculate that using beta. आप अपने नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क को कैलकुलेट कर सकती हो यूजिंग व्हाट बीटा. बीटा इज अ टेक्निक इन विच द सेंसिटिविटी ऑफ अ सिक्योरिटी इज रिटर्न टू चेंजेस इन द मार्केट रिटर्न. मार्केट रिटर्न में जो चेंज आएगा उसको कंपेयर करने के लिए या उसको स्टडी करने के लिए, उससे आपका सिक्योरिटी कितना सेंसिटिव है, कितना चेंज हो सकता है, कितना वॉलेटाइल है, उसको स्टडी करने के लिए वी हैव दिस बीटा का कैलकुलेशन. नाउ दिस बीटा is used in CAPM method. Now, what is CAPM? Capital Asset Pricing Model. To calculate the value of a particular asset, we use this technique. यहाँ से आप CAPM technique is used to calculate the price of a particular security or the expected return of a particular security. It was a model or a method which was developed in that beta is one of the major component other than the risk premium associated. Beta is used in that method. आपको ये CAPM model study करने की जरूरत नहीं है, but उसमें beta is one of the important component of the formula or the method suggested. Now, what is the formula for beta? Covariance between the security and the market divided by variance of the market. अभी जब मैंने कोवेरियंस इसीलिए इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया बिकॉज आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड द बीटा. बीटा क्या करता है, तो आपके मार्केट से कंपेयर करके इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड. ओके क्लास आई कंटिन्यू. सो बीटा क्या करता है, कोवेरियंस आपको डायरेक्शन बताता है कि कितना डायरेक्शन है उसका, पॉजिटिव है या नेगेटिव कोवेरियंस है. बीटा विल हेल्प यू टू कैलकुलेट कि कितना फ्लक्चुएशन पॉसिबल है. हाउ डू वी इंटरप्रेट बीटा, वो भी अभी हम कैलकुलेट करेंगे, बट फर्स्ट विल गो टू द फॉर्मूला. द फॉर्मूला इज कोवेरियंस बिटवीन द सिक्योरिटी एंड द मार्केट डिवाइडेड बाय द वेरियंस ऑफ द मार्केट. वेरिएंस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करना सीखा है, बट अंडरस्टैंड दिस दैट फॉर कैलकुलेटिंग आइदर कोवेरियंस और बीटा
The past data of the average market return is necessary. It is one of the main कंपोनेंट ऑफ कैलकुलेटिंग बीटा कि आपके पास मार्केट का पास्ट रिटर्न हो, क्योंकि अगर आपके पास पास्ट रिटर्न ही नहीं होंगे तो आप उसकी सेंसिटिविटी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कि उसमें कितनी वोलेटिलिटी और कितना फ्लक्चुएशंस पॉसिबल है. Now comes the interpretation of the beta value. What is written over here is important. When you calculate the data, जब आपके पास डेटा आ जाएगा तो आप उसको इंटरप्रेट कैसे करोगे कि वो प्रोजेक्ट में या सिक्योरिटी में कितना फ्लक्चुएशंस हो सकता है. बीटा इज इक्वल्स टू 1. बीटा इज इक्वल्स टू 1 में यहाँ पे लिखा हुआ है मूव्स इन लाइन विद द मार्केट. मूव्स इन द लाइन विद द मार्केट मतलब जितना फ्लक्चुएशन, अगर मार्केट में 10 पॉइंट्स का फ्लक्चुएशन है तो आपकी सिक्योरिटी में भी 10 पॉइंट्स का फ्लक्चुएशन आएगा. सिंपल एज दैट. अगर आपका बीटा इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 तो मतलब अगर मार्केट 10 पॉइंट से ऊपर जा रहा है तो आपका सिक्योरिटी भी 10 पॉइंट से ऊपर जाएगा. नेक्स्ट, बीटा मोर देन 1. इफ द बीटा इज having a higher value, it indicates higher volatility. It indicates what? Higher volatility. जैसे कि अगर मार्केट सपोज बीटा की वैल्यू हायर देन 1 में मैंने ले लिया 2, तो अगर बीटा 1 पॉइंट से बढ़ेगा तो मार्केट विल बी डबल, आपकी जो सिक्योरिटी है वो उससे ज्यादा वैल्यू से उस पर डबल इफेक्ट आएगा, उसकी वैल्यू ट्वाइस अफेक्टेड हो जाएगी. बीटा लेस देन 1 है मतलब लेस वॉलेटाइल. सपोज 0 to 1 के बीच में, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लेस देन 1 आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यू बिटवीन 0 to 1. अगर वो 0 to 1 के बीच में, सपोज आंसर है 0.8, तो अगर मार्केट में 1 रुपया 1% का इंक्रीज होगा तो आपकी सिक्योरिटी में सिर्फ 0.8 का इंक्रीज होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन क्लास? आप अपने सिक्योरिटी के रिटर्न को और मार्केट के रिटर्न को ऐसे चेक कर सकते हो उसकी वोलेटिलिटी कि सपोज अगर आपके बीटा की वैल्यू 3 आई है, मतलब अगर मार्केट में 1% का चेंज आएगा तो आपकी सिक्योरिटी में 3% का चेंज आएगा. अगर वो हायर देन 1 है तो मतलब यू विल हैव अ हाई वोलेटिलिटी रिस्क इन योर सिक्योरिटी. अगर वो लोअर देन 1 है मतलब लो फ्लक्चुएशंस कम है. बट सपोज अगर बीटा 0 है तो इट हैज नो रिलेशनशिप विथ योर मार्केट, विच इज रेयरली द केस. किसी भी सिक्योरिटी का बीटा 0 नहीं हो सकता बिकॉज every security is in a way or other affected by the market. But if it is less than 0, moves opposite to your market. अगर आपकी बीटा की वैल्यू नेगेटिव है मतलब आपकी जो सिक्योरिटी है वो मार्केट के अगेंस्ट जाएगी. अगर कल को मार्केट ऊपर जाएगा तो आपकी सिक्योरिटी नीचे जाएगी. मुझे बोलो आपका बीटा नेगेटिव कब होगा? योर बीटा विल ओनली बी नेगेटिव इफ योर कोवेरियंस इज नेगेटिव. वेरियंस तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, हमने क्योंकि उसका स्क्वायर किया होता है. तो आपका बीटा नेगेटिव कब होगा? जब आपका कोवेरियंस नेगेटिव होगा. आपका कोवेरियंस नेगेटिव है मतलब ऑफ कोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बीटा भी नेगेटिव है तो बीटा नेगेटिव भी सेम चीज इंडिकेट करेगा कि योर सिक्योरिटी इज मूविंग अपोजिट टू द मार्केट एंड इट डेफिनेटली इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी. तो इट इज ऑलवेज, देखो बीटा 0 या बीटा नेगेटिव इज नॉट एडवाइजेबल. यू कैन ऑलवेज गो फॉर बीटा इज 1 और बीटा हायर देन 1, बीटा लेस देन 1. पीपल हु आर हैविंग अ हाई रिस्क एपेटाइट शुड गो फॉर सिक्योरिटीज व्हिच हैव बीटा हायर देन 1. तो वहां पे आपका रिटर्न बढ़ जाता है. बट अगर मार्केट नीचे गया, इट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. ऐसा नहीं है कि हमेशा ग्रोथ होगा. सी, जब मैं बोल रही हूँ बीटा पॉजिटिव है मतलब कल को अगर वो मार्केट के डायरेक्शन में जा रहा है, मार्केट में अगर 1% का इंक्रीज होगा तो बीटा में 3, आपकी सिक्योरिटी में 3%. बट उसी हिसाब से मार्केट अगर 1% से नीचे गया सो योर सिक्योरिटी विल ऑल्सो हैव अ डाउनफॉल बाय 3%. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो जब हम बोलते हैं हायर द रिटर्न तो हायर रिटर्न के साथ हायर रिस्क ही एक्सप्लेन कर रहा है कि इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट. तो अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको डबल
रिटर्न मिल रहा है। तो मतलब अगर आपको मार्केट 1% से नीचे गया तो आपका लॉस भी डबल हो जाएगा। इसीलिए यू ऑलवेज सी द बीटा एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी और द इन्वेस्टमेंट। आपको बीटा कैलकुलेट करना आना चाहिए। जब आपको बीटा पता चल जाएगा तो आपको पता होगा कि हायर बीटा इंडिकेट्स मोर वोलेटिलिटी मतलब रिटर्न भी ज्यादा और रिस्क भी ज्यादा है associated with your project. Okay. There are two more concepts which are left for today's theory. I'll be winding this theory concept today, and then this will be the last lecture of the unit 2. Uh, I'm giving you people 5 minutes ka break. I'll start the lecture again after 5 minutes. Do not leave. Just keep your phone aside and have a break. And after that, we will continue. Okay, class?
Okay, class, we will continue with our lecture. Uh, there are two small concepts which are left to be covered. After finishing those two concepts, we will wind up the unit 2. We'll first start with a concept known as VAR, a very common concept or very important concept when we talk about risk or value at risk. That is the full form of the word VAR. Now, what is value at risk or what it helps us to calculate? Value of risk is a quantitative measure of potential final loss over a specified time frame and with the confidence level. Now, this method is usually used by institutions, but since it is an important concept, we will even study that कि how institution level पे या how do we calculate VAR and what exactly is VAR. Suppose if I ask you a very simple question, what is the maximum amount I expect to lose over a given period of time? मैं 10 अगर सपोज मेरा इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम है 3 साल का, तो इस 3 साल के टाइम फ्रेम में मेरा ज्यादा से ज्यादा लॉस कितना हो सकता है? क्योंकि सपोज मैंने रिस्क लेवल तो कैलकुलेट कर लिया, बट वो रिस्क लेवल तो नंबर्स में ना 10% 15% है, वोल्टैलिटी दिखा रहा है. अगर मुझे वो अमाउंट में चाहिए रुपीज में कि रुपीज इन टर्म्स ऑफ रुपीज मेरा कितना लॉस हो सकता है इन अ सर्टेन गिवन टाइम फ्रेम विथ द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी या चांसेस कि इतना परसेंट चांस है इस गिवन टाइम फ्रेम में मेरा इतना लॉस होगा. इस क्वेश्चन का अगर मुझे आंसर चाहिए तो the technique which we use for that or the method which we use is VAR. Now we'll read the definition of the same. VAR in personal finance is a statistical measure used to quantify the potential loss an investment portfolio or asset may experience over a specific time frame with a certain level of confidence. It helps us to answer a key question. What is that key question? What maximum amount of loss I could undergo within a given period? Say a confidence of 95%. It covers, what does it covers? It covers three major components. What are those three major components? Potential loss amount, टाइम फ्रेम एंड कॉन्फिडेंस लेवल. ये तीन चीज उसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जो वो एक कवर करता है. नाउ it should always be the specific a monetary value और परसेंटेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट यू माइट लूज. वो परसेंटेज में भी हो सकता है कि सपोज अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है तो उसका 20%. सो या फिर आपका इन्वेस्टमेंट अगर 1 लाख का है तो उसका 10%. सो द अमाउंट कैन आइदर बी इन परसेंटेज और योर अमाउंट कैन बी इन value, yeah, monetary value. If not in percentage, then in rupees or monetary value. So that will be covered. The next is the time frame. This time frame can be 1 day, 1 week or 1 month or a year. कि आपका तो भी जो भी टाइम जोन है उस टाइम जोन को मेजर करके मैं एक दिन में कितना लॉस सफर कर सकती हूँ, मैं एक महीने में, एक हफ्ते में, एक साल में. और इस तरीके से मुझे अपने डिसीजन मेकिंग में एज अ इन्वेस्टर इट विल बी वेरी यूजफुल इफ आई नो कि बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो शॉर्ट टाइम हॉरिजॉन के लिए अच्छे होते हैं एंड देयर आर मेनी इन्वेस्टमेंट्स और सिक्योरिटीज व्हिच आर गुड फॉर अ लॉन्ग टाइम हॉरिजॉन. आप इंट्राडे ट्रेडर्स होंगे वो वार का यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग कि उनको कैसे एग्जिट लेना है. इंट्राडे तो डेली बेसिस पे एंट्री एग्जिट लेते हैं, सो दैट कैन बी द केस. अगर आप लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन के लिए सोच रहे हो तो भी आप इसका यूज कर सकते हो. नाउ व्हाट इज द कॉन्फिडेंस लेवल? हमने यहाँ पे 3 बार वर्ड मैंने रिपीट किया कॉन्फिडेंस लेवल. नाउ कॉन्फिडेंस लेवल इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी दैट द actual loss will not exceed estimated value. आपका जो एक्चुअल लॉस है वो उसको एस्टिमेट नहीं करेगा. उसके कॉन्फिडेंस क्यों यूज करते हैं? द प्रोबेबिलिटी दैट और द कॉन्फिडेंस दैट द प्रोबेबिलिटी और द कैलकुलेशन विच वी हैव मेड विल बी सक्सेसफुल, विल बी करेक्ट. उसको हम बोलते हैं 95% या 90% या 80%, वट एवर द कॉन्फिडेंस लेवल में बी. दैट इज नथिंग बट द लेवल ऑफ विच इट इज गिविंग यू द कॉन्फिडेंस अबाउट कि इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होगा. इतना ज्यादा उसका सक्सेसफुल होना या एक्चुअली उतने ही उस पे एक्यूरेटली इम्प्लीमेंट हो सकता है वो.
There's a very simple example given over here. Let's see what the example states. You have an investment portfolio of dollar rupees 50,000 and you calculate 1 month VAR of rupees 2000 at a 95% कॉन्फिडेंस. आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 50,000, बाकी सारा डेटा आपने खुद से कैलकुलेट किया. क्या डेटा कैलकुलेट किया तो आपका जो वार का वैल्यू आया वो 1 मंथ वार की वैल्यू आई 2000 एट 95 कॉन्फिडेंस. हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस? तो इसका क्या मतलब है कि देर इज अ 95% प्रोबेबिलिटी कि एक मंथ में जो आपका लॉस है वो 2000 को एक्सीड नहीं करेगा. अगेन, there is 95% probability that your loss in 1 month will not exceed more than 2000. Oppositely आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि there is only 5% chance that the loss of 1 month in a particular security of yours will not exceed 2000. 2000 से ज्यादा का लॉस होगा, इसका कितना चांस है? सिर्फ 5%. 2000 से कम ही रहेगा, इसका कितना कॉन्फिडेंस है? 95%. So now you may understand why it is important to take a proper entry and exit in whatever security we are thinking to invest in. वो proper entry और exit point आप इसको देख के check कर सकते हो. इससे आपको risk भी मिलेगा और उस risk पे आपकी value, आपकी security की value कितनी है. मतलब suppose यहाँ पे हमने example लिया था कि the investment value of our portfolio was 50,000. तो एक महीने में कम होगा तो इसका वैल्यू कितना कम होगा? 48,000 आएगा. तो एम आई रेडी टू गो टिल वैल्यू ऑफ 48,000? अगर नहीं तो आई हैव टू टेक अ अर्ली एग्जिट. मुझे अभी क्या करना चाहिए? तो इस सिक्योरिटी को बेच देना चाहिए एट 50,000 ओनली. बट सपोज मैं इसको रिस्क ले रही हूँ और कल को मार्केट ऊपर गया तो आई हैव द प्रॉफिट. वैल्यू एट रिस्क आपको ये नहीं बता रहा है कि सिक्योरिटी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. वो बता रहा है कि अगर लॉस हुआ तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है. इज इट क्लियर? Now how will you use this technique for in personal finance? आपको अगर अपने खुद के बेसिस पे डिसीजन लेना है तो ये आपके लिए कैसे आपको हेल्प करेगा? तो सबसे पहले ये आपको आपका रिस्क टॉलरेंस जो लिमिट है, it will help you to set that limit. As an individual, what is your risk tolerance limit? So once you know कि आपके असेट से कितना रिस्क एसोसिएटेड है एंड यू नो योर ओन रिस्क एपिटाइट, यू विल बी एबल टू टेक डिसीजंस और कॉल्स of whether or not to invest on those securities. You can also calculate VAR of your portfolio or separately VARs of your securities. That will help you to understand what is the correct सेट ऑफ असेट्स विच यू हैव टू बाय. कौन से करेक्ट असेट्स होंगे जो आपके वार को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, या जो आपके कंबाइंड रिस्क है उसको कम कर रहे हैं. Now, there is one limitation of this VAR. What is this limitation? The VAR model often assumes normal condition. वो हमेशा जो आपका कंसिडरेशन है या जो कैलकुलेशन बेसिस है ना, वो हिस्टोरिकल डेटा पे होता है. हिस्टोरिकल डेटा इज नथिंग बट योर पास्ट रिटर्न्स. पास्ट रिटर्न के बेसिस पे वो एक नॉर्मल कंडीशन अज्यूम कर रहा है. वो सिस्टमैटिक रिस्क को कंसिडर नहीं कर रहा है कि कल को अचानक से अगर कोई चेंज होता है, वर्स्ट वो क्या करेगा? उसको कैलकुलेट कंसिडर नहीं करेगा. इट इज कंसिडर्स अ नॉर्मल सिचुएशन एंड स्टिल गिव्स यू द वर्स्ट केस सिनेरियो. व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो? कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस या मैक्सिमम पोटेंशियल लॉस कितना है, उतना होगा ऐसा नहीं है. इट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो विच हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि आपको इस सिक्योरिटी से मैक्सिमम लॉस अगर इतना होगा तो आर व्हाट इज योर कॉल और डिसीजन टू बी वेदर और नॉट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट सिक्योरिटी. Is the concept of VAR clear? Class respond.
Now, of course, for calculating VAR, there are various methods which are used. Mainly, there are three methods. The first one is historical stimulation method or the historical method. Now, this historical method is nothing but it uses daily PNL or the historical daily returns of the portfolios to calculate VAR. The next is parametric method. What is a parametric method? In parametric method, we are talking where it uses variance and covariance. वार में सेकेंड जो मेथड होता है, पहला होता है हिस्टोरिकल मेथड इन विच इट यूजेस पास्ट डेटा, पास्ट हिस्टोरिकल डेटा डेली रिटर्न्स कैलकुलेट करके वो करता है. नेक्स्ट इज पैरामेट्रिक method. What is the parametric method? Over here it uses combination of variance and covariance. आपको इसका दूसरा नाम होता है variance covariance method. The last one is Monte Carlo stimulation. Now Monte Carlo stimulation method is based on random sampling. Random sampling और random situations create करके वो आपका VAR calculate करता है. These are some advanced methods. ये आप अपने किसी सॉफ्टवेयर पे कर सकते हो. You don't usually calculate it manually. These calculations are done on software, but ये बहुत ज्यादा यूजफुल मेथड होता है. You can इवन इंस्टीट्यूशंस जो आपकी इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज होते हैं, अगर वो अपने वो इंश्योरेंस कलेक्ट कर रहे हैं, जो बैंक्स होते हैं उनको पता है एक मिनिमम कैपिटल रखना होता है. कोई कंपनी जब अपना राइट ऑफ कंपनी स्टार्ट करती है तो उनके पास जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, या किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में अगर उनको किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है तो कितना पॉसिबल लॉस हो सकता है, वो भी ये वार के टेक्निक को यूज करके कैलकुलेट करते हैं. इवन दोज पीपल who have those who are working in industries use this technique to check the maximum potential loss. Last concept for the day, that will be value added risk. Now these are two different terms. Value added risk is not a mathematical or scientific concept as such, but as an investor you should understand this very simple concept. वैल्यू एडेड रिस्क और वार में सबसे पहले तो कंफ्यूज नहीं होना है. वार इज वेर इट हेल्प्स यू टू कैलकुलेट रिस्क. इट इज अ मेथड. There are different methods through which you can know the maximum potential loss, whereas VAR is very value added risk is very different. As an investor you should understand which risk are you ready to accept. It refers to the level of risk undertaken by an investor or an organization that contributes positively to the returns and enhances the overall value. As an investor आपको ध्यान देना चाहिए कि आप जो रिस्क ले रहे हो, that risk should be intentional and measured. अदरवाइज आप गैम्बलिंग कर रहे हो. अगर आप बिना सोचे समझे, बिना रिस्क और रिटर्न को मेजर किए, बिना उसको कैलकुलेट किए, विदाउट टेकिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन यू आर इन्वेस्टिंग एनी विच हाउ, तो आप वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, यू आर गैम्बलिंग. इसीलिए वैल्यू एडेड रिस्क इज रिस्क का उतना पार्ट जो आपके इन्वेस्टमेंट को पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है. रिस्क इज नॉट ऑलवेज लॉस ही होगा. हाँ, रिस्क इज मतलब आप चांस ले रहे हो कितना प्रॉफिट हो सकता है या कितना लॉस हो सकता है. जैसे मैंने बोला, अगर वो बीटा 3% है, मतलब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको ट्रिपल द प्रॉफिट होगा, बट मार्केट नीचे जाएगा तो आपको ट्रिपल द लॉस भी होगा. सो टू टेक अ डिसीजन कि कितना पॉइंट ऑफ रिस्क आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू बढ़ा रहा है और कौन सा रिस्क है जो अनहेल्दी रिस्क है या अनइंटेंशनल रिस्क है जिसको आपने मेजर नहीं किया या ब्लाइंडली ले रहे हो, सिर्फ यू आर जस्ट बिकॉज उसमें आपने रिटर्न्स देख लिया हाई, बाकी किसी दूसरे फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया. the expected benefits that exceed the cost of taking the risk. आपको अपने रिस्क का जो कॉस्ट है, क्या वो रिटर्न्स उतना कवर कर पा रहा है या नहीं, even that is supposed to be checked. What is nature of this value added risk? Value added risk should be intentional and measured. Then it is only taken after proper analysis and planning. There are many investors who take high risk, but they take high risk on the
नोशन कि दे नो कि उनको कौन से कितने रिस्क पे कितना प्रॉफिट हो रहा है और उनका पोर्टफोलियो पूरा मैनेज्ड आउट है। आप एक साथ सारे रिस्क के इन्वेस्टमेंट में without understanding the consequences, those investors taking high risk know the consequences of taking that high risk. आप ब्लाइंड साइडेडली हाई रिस्क ले रहे हो, वो वैल्यू एडेड रिस्क नहीं होगा, वो आपको कल को सिक्योरिटी में लॉस सफर करवाएगा। It aims at wealth maximization. It is aligned with your objectives. आपके ऑब्जेक्टिव्स को सोच समझ के आपको रिस्क लेना है। A person at the age of 30 can take high risk and can go for long term investment, whereas a person at the age of 60 or 80 should go for investments which give you constant return and the risk is very mild. तो उस समय जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है that should be aligned with your risk. Next, it is this risk is controlled and strategic. आप क्या कर रहे हो, तो आप देख रहे हो, आप कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हो एंड देन यू आर टेकिंग अ डिसीजन. वैल्यू एडेड रिस्क हेल्प्स यू टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी. इफ यू आर एंटरिंग द मार्केट, ऑफ कोर्स यू हैव टू, आप रिस्क अवॉइड नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट से कि मेरा किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में जीरो रिस्क है. अगर जीरो रिस्क है मतलब आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, आप गोल्ड में डिपॉजिट कर रहे हो, आप ऐसे जगह पे खरीद रहे हो, आप सिक्योरिटीज में पैसे नहीं लगा रहे हो. If you are talking about trading in market, if you are talking about trading in securities, it means that you are talking about investing and taking risk. Now this risk should be calculated, should be intentional, it should add value. कल को इससे आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट में, आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपको फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए. Is it clear? Today we covered two concepts. One is measures of dispersion of risk and the next one was VAR, that is value at risk. Value at risk and different measures of dispersion helps you to calculate risk while taking a decision. With this we have completed two modules of your unit personal finance. We will be you people will be continuing with model 3 4 and module 3 4 and 5 later on by different professors. For now I can end this lecture. The links of the videos will be sent to you in your group. Wait for it, it might be sent later. Thank you students, bye. I'm ending the lecture now.